بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر محمد رضوان محمود الحضری جو اسلامی پرسپیکٹو بتا رہے تھے ہمارے ٹاپک کا کہ ہماری ذمہ داریاں بینگ اے مسلم کیا ہے, دین الہی ہمیں کیا بتاتا ہے. انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا چلوں گا کہ جو یہ بات کر رہے تھے بقول اقبال نے کہا کہ وہ قوم جو خاص ترکیب رسول ہاشمی پہ بنی, وہ قوم جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی, وہ قوم جس کو کتاب مبین میں یا ایھا المؤمنون کہہ کے پکارا گیا, وہ قوم جو حی علی الفلاح کی صدا لگاتی ہے, وہ قوم جس میں بہترین شخص وہ ہے جو بلند اخلاق کا مالک ہے, وہ قوم جو ہر خوشی اور غمی میں سجدہ ریت ہوتی تھی, سجدہ کرنے کے باوجود آج ہم کہاں کھڑے ہیں, وہ قوم جس کے بارے میں کتاب مبین میں زندگی کا مقصد صرف عبادت تھا, آج کہیں بھٹک گئی, آج کچھ بھول گئی اور اخلاقی پستی میں گر گئی. بقول اقبال تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں, اے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا ہے کہیں اور. اب زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے, آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں دعوت دینا چاہتا ہوں چیئرپرسن جے سی میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر سلمہ انبر صاحبہ سے وہ تشریف لائیں اور اس ٹاپک کے بارے میں ہمارے خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر کاشان عاطف صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اہم ٹاپک فارمل میڈیا ورسز سوشل میڈیا رسپانسبلٹی آف یوزرز جو ہے اس اہم ترین موضوع کو چنا اور اس پہ سیمینار کا انعقاد کیا, اور مجھے ناچیز کو بھی ادھر انوائٹ کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. اور جہاں تک بات ہے ٹاپک کی تو اس کے لیے میں 2-3 پوائنٹس پہ بات کروں گی. فارمل میڈیا اور سوشل میڈیا. پہلے تو یہ کہ فارمل میڈیا ہے کیا اور سوشل میڈیا کیا ہے, اور اس کے بعد دین میں کچھ پوائنٹس جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گی. اس کے بعد جو ہاؤس ہے از اوپن فار یور کوسچنس, کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو ان دس لینئر کمیونیکیشن جس میں ایک پرسن آئے ایک سائٹ پہ کھڑا ہو جو کہ آپ کا جو ہے اسٹیج ہے یا پوڈیم ہے ادھر کھڑا ہو اور وہاں سے ساری گفتگو کر کے لینئر کمیونیکیشن اور چلا جائے بیٹھ جائے, آپ کے کوسچنس نہ کرے, کوسچنس نہ لے یا کوسچنس کو جو ہے آنسر نہ کرے. تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یور کوسچن. اس سے پہلے جو میں 2-3 پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ پوائنٹس پہ میں آپ سے بات کروں. اچھا, فارمل میڈیا جو ہے اس قسم کی کمیونیکیشن یا ایسے میڈیا کو کہتے ہیں جس میں آپ کی انفارمیشن یا آپ کا میسج جو ہے ڈیلیبریٹ ہے, کنٹرولڈ ہے, فلٹرڈ ہے اور باقاعدہ پالیسی کے تحت جو ہے آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں. اچھا, اب چونکہ آپ لوگ میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس بات سے واقف ہیں کہ نیوز پیپرز, ریڈیو, ٹی وی اور فلم سب کے سب ہم فارمل میڈیا کے ڈفرینٹ ژانراز ہیں جس میں ہر ایک جو ژانرا ہے وہ ایک پالیسی جو ہے پالیسی لائن کو ٹو کرتا ہے. جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہوگا ہسٹری کی کلاس پڑھتے ہوں گے یا انٹروڈکشن ٹو میس کمیونیکیشن پڑھتے ہوں گے تو آپ اس میں جو ہے نیوز پیپرز کی ہسٹری یا نیوز پیپر کے بارے میں آپ کو ڈیفینیشنز جب پڑھتے ہیں آپ تو آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جگ اخبار کی پالیسی کیا ہے, نوائے وقت کی پالیسی کیا ہے, خبریں کی پالیسی کیا ہے, اسی طریقے سے ایکسپریس نیوز چینل ہے اس کی پالیسی کیا ہے, سما کس لائن کو ٹو کرتا ہے, اے آر وائی نیوز کس طریقے سے کام کرتا ہے یا جیو نیوز کیسے کام کرتا ہے. اٹ مینس کہ وہ ایک خاص ڈائریکشن, ایک نقطۂ نظر جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. یہ ہے آپ کا فارمل میڈیا. اچھا, اب ایک فری سوسائٹی کے اندر فارمل میڈیا جو ہے اس کا پرپس کیا ہے, وہ فنکشن کس طریقے سے کرتا ہے.
फॉर्मल मीडिया जो है एक फ्री सोसाइटी के अंदर या फिर एक जो है जो कंट्रोल या कम्युनिस्ट सोसाइटी है उसके अंदर भी उसके 3 मेजर फंक्शन हैं। नंबर 1, टू इन्फॉर्म द ऑडियंस, लोगों को इतलात फराहम करना, खबरें फराहम करना, इर्द गिर्द के वाक़यात बताना, उसके साथ उनको जो है कॉन्टेम्परेरी इश्यूज, जो सोसाइटी के आपके जो प्रिवेलिंग इश्यूज हैं, जो आपकी पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग है या तरबियत है, वो करना थ्रू एजुकेशन। नंबर 1 टू इन्फॉर्म, नंबर 1 टू एजुकेट। अच्छा, मीडिया अब तीसरा उसका फंक्शन है टू एंटरटेन, और इसके साथ ऑडियंस को बामायनी बामकसद तफरीह फराहम करना। ये 3 उसके मेजर फंक्शंस जो है मीडिया किसी भी फ्री सोसाइटी या फिर कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है, कम्युनिस्ट सोसाइटी से मेरी मुराद वो सोसाइटी है जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको उसकी आज़ादी जो है ऑडियंस को हासिल नहीं है, और जहाँ पर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट्स को, पार्टीज को जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। ये 3 मेजर फंक्शंस हैं जो कि मीडिया अज्यूम करता है एक फ्री सोसाइटी के अंदर। अच्छा, अब अगर हम मीडिया के फंक्शन को देखें कि मीडिया जो है वो किसी सोसाइटी में करता क्या है। मीडिया जो है गवर्नमेंट्स की रिट को एस्टैब्लिश करता है सोसाइटी के अंदर। गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी रिट या फंक्शन करती हैं थ्रू मीडिया। आप इस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हुए आपको मीडिया बताता है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो फेडरल लेवल पे है और प्रोविंशियल लेवल पर पीटीआई की गवर्नमेंट है। आपको मीडिया जो है अपने न्यूज़ फंक्शन के जरिए से और जो उसका न्यूज़ का एक जो पर्पस है इंफॉर्मेशन का, उसके जरिए बताता है कि आजकल पंजाब गवर्नमेंट किस किस्म के मसाइल से दो चार है और आजकल आपके क्या मसले हैं। इसके साथ मीडिया जो है वो गवर्नमेंट की रिट एस्टैब्लिश करता है। मीडिया जो है सोसाइटी में कम्युनिटीज को कनेक्ट करता है। हम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ थ्रू मीडिया कनेक्ट है। हमें इंडिया के हालात का पता या इंडिया के हालात जो है, इंडिया को हमारे हालात के बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसके जरिए से मिलती है? मीडिया के जरिए से, राइट। अच्छा, मीडिया जो है आपका वो आपकी इंडस्ट्री जो आपकी इकोनॉमी है उसकी ड्राइविंग फोर्स भी है। इंडस्ट्री जो है या आपकी फाइनेंशियल जो क्या कहना चाहिए, जो आपकी फाइनेंस है उस शोबे को जो लाइफ ब्लड प्रोवाइड करता है वो मीडिया है। मीडिया हमें मार्केट्स के बारे में बताता है, मीडिया हमें कंपटीशन बताता है, मीडिया हमें ऐसे एरियाज बताता है जहां इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ मीडिया हमें ये इन्फॉर्म करता है कि इंडस्ट्री जो है उसकी क्या सिचुएशन है, ट्रेड किधर जो है वो उसके लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं, उन मार्केट के मसाइल क्या हैं और किस तरीके से हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामान बेच भी सकते हैं, खरीद भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस जो है मीडिया थ्रू इट्स जॉनरा ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है उसके जरिए से मीडिया जो है हमें हमारी इंडस्ट्री या फिर जो मईशत है, जो कैपिटल है, जो ड्राइविंग फोर्स है पूरी दुनिया की, उसको सपोर्ट फ्राहम करता है। इसके साथ जो मीडिया का फंक्शन है वो है गवर्नमेंट्स जो है उनकी इमेज बिल्डिंग करना। गवर्नमेंट्स जो है उसके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी कैंपेन चलाती हैं, पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट करती हैं, लोगों को एजेंडा देती हैं। जिस तरीके से आजकल आप लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना एजेंडा जो है वो रन कर रही हैं।
آپ کو وہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ میڈیا کے تھرو ملتی ہے. اور وہ میڈیا کا فنکشن ہے پبلک ریلیشنز کا فنکشن، جس میں جو ہے پولیٹیکل کیمپینز چلتی ہیں، اس کے ساتھ آپ کی مارکیٹنگ کی کیمپینز چلتی ہیں، آپ کو سوسائٹی کے ٹرینڈز پتہ چلتے ہیں، آپ کو سوسائٹی کی کلچرل پروڈکٹس پتہ چلتی ہیں، کلچرل ٹرینڈز کا پتہ چلتا ہے. یہ سارے کے سارے کام جو ہے پبلک ریلیشنز اور تھرو میڈیا کیے جاتے ہیں. اچھا، چوتھی چیز جو تیسری چیز جو تھی میڈیا کا فنکشن تھا ٹو پرووائڈ انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ جو ہے از ناٹ فار دی سیک آف انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ جو آپ کی مووی ہے، آپ کا ڈراما ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پبلک اوپینین کو فارمولیٹ کرتا ہے تھرو دی لینس آف انٹرٹینمنٹ. مثلاً آپ موویز دیکھتے ہیں، بہت ساری موویز کے اندر جو ہے آپ کی ایموشنز ہیں، ڈراما ہے، اس میں جو ہے فکشن ہے، کلچر ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے اس کے اندر. مثلاً کہ اس طریقے سے کی جو ہے پروڈکٹ ہمیں دی جاتی ہے جس سے ہم اپنے ایموشنز کو سیٹسفائی کرتے ہیں. ہم اس فنکشن کے ذریعے سے جو ہے میڈیا کے انٹرٹینمنٹ کے فنکشن کے ذریعے سے ہم امیوز بھی ہوتے ہیں، رائٹ. ہماری ایستھیٹک جو ہے اس کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کے لیے ہم ڈراما دیکھتے ہیں، ہم کوئی ناول پڑھتے ہیں، ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، ہم شاعری پڑھتے ہیں، ہم موویز دیکھتے ہیں. دیز آر دی پروڈکٹس آف میڈیا کا جو یہ فنکشن ہے اس کے ذریعے سے سوسائٹی کو جو ہے ایک بامعنی بامقصد تفریح بھی فراہم کی جاتی ہے اور اس کو انٹیگریٹ بھی رکھا جاتا ہے. اور سوسائٹی کو ٹرینڈز بھی میڈیا دیتا ہے. سوسائٹی کو ٹرینڈز بھی میڈیا دیتا ہے. مثلاً آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات لے لیں تو وومن امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو فیمنزم کا کانسیپٹ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو بھی مرکزی دھارے میں شامل ہونا چاہیے، عورتیں جو ہے ان کو پالیٹکس کے اندر آنا چاہیے. عورتیں جو ہے، آپ سعودی عرب کی ایگزامپل لے لیں، وہاں پر اب مثلاً کہ ایک فری سوسائٹی کا کانسیپٹ آ رہا ہے وہاں پر بھی، اور فیمیلز جن کو پہلے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی اب وہاں پر ڈرائیونگ کرتی ہیں، وہ سارے بزنسز کر رہی کہ عورتوں کو جو ہے اس کو جو ہے مین اسٹریم کے اندر شامل کیا جائے، گورننس کے اندر شامل کیا جائے، فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے. یہ سارے ٹرینڈز کون دیتا ہے؟ میڈیا دیتا ہے. تو آپ یہ اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ کس قدر امپورٹنٹ جو ہے پلر آف دی سوسائٹی ہے. ویسے تو آپ کو ٹریڈیشنلی کلاسوں کے اندر میں بھی اور آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ میڈیا از دی فورتھ اسٹیٹ آف دی گورنمنٹ. نمبر 1 جو ہے آپ کی جو ہے پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اینڈ دی فورتھ از دی میڈیا. میں تو سمجھتی ہوں کہ میڈیا جو ہے نمبر 1 جو سوسائٹی کو انٹیگریٹ بھی رکھتی ہے اور ڈس انٹیگریٹ بھی رکھتی ہے. اب جب آپ یہ جو اس سارے فنکشنز کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ فری سوسائٹی کے اندر یہ سارے کا سارا فنکشن جو ہے ہمیں نظر آتا ہے تھرو نیوز پیپرز، تھرو ریڈیو، تھرو ٹی وی. جو ایک پالیسی، ایک جو ہے ایک ڈائریکشن، ایک انفارمیشن کو فلٹر کر کے لے کر چلتا ہے. اب دوسرے میں مثلاً کے جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر جو اس کے بعد آئی ول اوپن دس جو فلور ہے فار کوسچنز. دوسرا جو ہمارے پاس میڈیا جو ایمرجنگ میڈیا ہے پچھلے 2 ڈیکیڈز کے اندر، جس نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک نئی زندگی کا ٹرینڈ دے دیا ہے، ہم ایک نئی دنیا کے اندر رہتے ہیں، اس کا نام ہے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا. اب یہ سوشل میڈیا ہے کیا؟ سوشل میڈیا بنیادی طور پر ایسے ٹیکسٹ، ایسی پوڈ کاسٹ، ایسی ویڈیوز جو ہے وہ ورچولی یعنی انٹرنیٹ کے تھرو کسی جو ہے آپ کی کمپیوٹر اسکرینز کے اندر اور اس کے بعد آج کل جو اسمارٹ فونز آ گئے ہیں اس کے اوپر پلیس کرنے کا نام ہے، جہاں پر اس پوسٹ، اس ویڈیو، اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے آپ جو ہے انٹریکٹ کرتے ہیں سوشلی ود دی ادر پیپل.
अगर आप सोशल मीडिया के फंक्शन को समझें तो सोशल मीडिया जो है वो हमें इंटरेक्शन की एक जो उसके अंदर कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन है उसका, उसके रिस्पॉन्सेस है, उसके रिस्पॉन्सेस हैं, वो सारे के सारे जो है हम उसके जरिए से इंटरेक्शन करते हैं सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया पे हम इंटरेक्ट करते हैं। अब जो लीगल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल मीडिया में है, मसलन कि वहाँ पर सेलेक्टिविटी है, ऑनर्स ने जो डिसाइड किया मसलन कि आपके इधर कोई जुल्म हो गई, ज्यादती हो गई, अगर मीडिया के जो एडिटर्स हैं, न्यूज़ एडिटर हैं, वो ये नहीं समझता इसको कवर करना, आपको बुलेटिन्स के अंदर जगह नहीं मिलेगी, आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन है फॉर एवरीबॉडी, जहां पर आप सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ऑनलाइन बिजनेसेस भी हैं, इसमें फेक न्यूज़ भी है, इसमें आज़ादी इजहार भी है, और इसमें प्रोपेगेंडा भी है, इसमें फेक न्यूज़ भी है। अब जब एक चीज़ ओपन है तो उसका डिसाइड हमने करना है कि उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से है कि सोशल मीडिया जो कि ओपन फॉर्म है तो वो किसी पॉलिसी लाइन को लेकर नहीं चलता, उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। वहाँ पर ऑडियंस जो है, जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, वो ऑडियंस की अटेंशन को कैच करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा करते हैं। मसलन आपको थंबनेल्स, ये जो आपको खबरें नहीं मिलती ब्लॉग्स के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा होता है कि मौसम के बारे में महकमा मौसमियात ने क्या पेशन गोई कर दी, सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे, सॉर्ट ऑफ, यानी ऐसी चौंका देने वाली चीजें जो कि आपको, अभी आपने फेक न्यूज़ की बात कर रहे थे, जो मेरे से पहले सर बात कर रहे थे, महमूद रिजवान साहब, शायद रिजवान महमूद साहब, के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है उसके सोशल मीडिया के ऊपर। तो सोशल मीडिया जो है वो एक ओपन फॉरम है, उसका जो बिजनेस मॉडल है उसने ऑडियंस जो है उसको इस तरफ लगा दिया है पाकिस्तान के अंदर। अब आप ये देखें कि आजकल हमारी जो सोसाइटी है वो उसकी एक नई जुबान वजूद में आ गई है। बोलने के लिए हम उर्दू बोलते हैं, लेकिन लिखने में हम क्या करते हैं, रोमन इंग्लिश लिखते हैं। हमारी जुबान इस सोशल मीडिया की वजह से कहीं खो रही है। बोलते उर्दू है, लिखते उर्दू अंग्रेजी में है हम। ये सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ है सोशल मीडिया का। इसके अलावा सोशल मीडिया की वजह से हमारे एथिकल प्रॉब्लम्स ये आए हैं कि इस वर्चुअल वर्ल्ड, इस डिजिटल वर्ल्ड ने लोगों को डुअल फेसेस दे दिए हैं। एक फेस जो है वो आपका वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, एक आपका एक्चुअल फेस है। इस सोशल मीडिया की वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं। इस सोशल मीडिया की वजह से लोगों की प्राइवेट लाइफ्स जो है वो मुतासर हो गई है। छोटी सी चीज, एक ठुमका वायरल हुआ है आजकल, जी मेरा दिल ये पुकारे आजा, और हर बच्चे नौजवान को उन्होंने, इस मैट्रिक की वो लड़की है और उसकी वीडियो वायरल हुई है, और हर इस बिजनेस मॉडल की वजह से लोगों को इसके पीछे लगा दिया कि कोई इस तरीके की जो है ना वो नेचुरल या कोई इस तरीके से रूटीन से हटा हुआ काम करे कि आप वायरल हो जाए। इस तरीके के ट्रेंड्स बन गए हैं। टिकटॉक है, ये जो ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी की सारी बड़ी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। इसके जरिए से लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। लोगों की आसानी, मुझे मैं आ रही थी रास्ते में, उस्मान साहब का मुझे मैसेज आ रहा था, तो बड़ा इंस्टेंटली मैसेज मुझ तक जो है डिलीवर हो रहा था। उन्होंने मुझे मसलन कि आपको कोई पिन भेज देते हैं, ये जो एड्रेस के लिए उसको ढूंढना नहीं पड़ता, आप बड़ी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, वीडियो। लेकिन हमने इस जो है इस एप्लीकेशंस जो है, ये जो सोशल मीडिया है, उसको प्रोपेगेंडे के लिए, फेक न्यूज़ के लिए, अब ये आप ये समझ लें कि ये जो है ना, अब जगह जो है ना वो आपकी हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ना उसमें ट्रांसफॉर्म हो गई है, और ये बाकायदा प्रोपेगेंडे टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है।
मोदी ने मसलन कि मेरे पास वो टाइम की कुछ शॉर्टेज है, तो मैं आपको बताती कि बिग डेटा एनालिसिस क्या है। बिग डेटा एनालिसिस के तहत किस तरीके से ट्रम्प इलेक्शन जीता था जबकि फॉर्मल मीडिया सारा उसके खिलाफ था। इंडिया के अंदर मोदी ने किस तरीके से इलेक्शन जीता जबकि सारा फॉर्मल मीडिया उसके खिलाफ था। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई कैसे जीत गई थी किसी हद तक इस बिग डेटा एनालिसिस की, इस सोशल मीडिया की बुनियाद पर। और हमें जो है इस सोशल मीडिया का जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या कहना चाहिए मीडिया माइंडेडनेस की टर्म इस्तेमाल हो रही है कि हमें जो है वाइजली इसको इस्तेमाल करना चाहिए, हमें एथिकली इसका यूज़ करना चाहिए। इसके वीडियो के फंक्शन की वजह से ये फिल्म भी है, ये आपका टीवी भी है, और हर बंदा जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो ये कंसंट्रेटेड पावर, जिसकी मैंने पावर आपको पहले फॉर्मल मीडिया की शक्ल में बताई है, वो ये पावर लेकर फिर रहा है। और इस पावर को उसने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर। और ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारे स्कूलों से स्टार्ट होगी, जहाँ पे हमें मीडिया लिटरेसी सेंटर्स, और पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है कि मीडिया लिटरेसी सेंटर्स होने चाहिए और मीडिया का जो है को लिटरेट करना चाहिए कि इस स्मार्टफोन को, इस टेक्नोलॉजी को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको सोसाइटी की और इसकी रेगुलेशन भी करनी पड़ेगी हमें। अभी फिलहाल तो जो ये है, ये सोशल मीडिया इस वक्त आजकल की दुनिया में तो बिल्कुल एक जो है ना, आप ये समझ लें कि कोई ख़तरनाक चीज़ बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की, मैं एग्जाम्पल्स में नहीं जाऊँगी, आप लोग सारे के सारे खुद देख रहे हैं आजकल जो तरीके से पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, उनकी वीडियोस, उनकी ऑडियोज वायरल हो रही है। और उसके नतीजे में आपने कभी सोचा है उन लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जिनकी वीडियोस वायरल होती है, उनका क्या बनता है, उनकी फैमिलीज का क्या बनता है? और वो लोग भी हैं जो कि इस तरीके की ये जो असलम लावा टाइप, अख्तर लावा, यस अख्तर लावा, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता। अख्तर लावा साहब जो है वो इस कदर वायरल, अब जो उनको वायरल कर रहे हैं, जो उनको आगे से आगे मसलन के फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब उसकी आप उनको देखें, मसलन के आप रिस्पॉन्स करें, उसको फीडबैक दें, उसके ऊपर एक्शन करें ज़रूर मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन ये सोच कर करें कि आपके ये रिएक्शन, आपका ये फीडबैक जो है ये उस बिजनेस मॉडल जो है उसका हिस्सा है। आप जब उसको वायरल करते हैं, उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, वो काउंट होती है, आपकी ओपिनियन, आपकी ट्रोलिंग भी काउंट होती है। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी फ्री लंच नहीं है। ये जो आप रिस्पॉन्स करते हैं इसकी कीमत है, आप कीमत अदा कर रहे हैं, लोग इससे अर्न कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी क्लासेस के अंदर, हमें अपनी मीडिया के मसलन के स्टूडेंट्स के अंदर और जनरली अपनी ऑडियंस जो है उनको सारों को लिटरेट करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का फंक्शन क्या है, सोशल मीडिया जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसका बिजनेस मॉडल जो है वो कैसे हमारी लाइफ पर असरअंदाज होता है, एथिक्स इसमें क्यों ज़रूरी है, और क्यों हम जो है इस मसलन के वर्चुअल वर्ल्ड जिसके अंदर हम रहते हैं, अब तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बॉर्डर्स की तो कोई हैसियत नहीं, इस वर्चुअल वर्ल्ड जो है इसको हमने किस तरीके से एथिकल बनाना है, इसको इसके अंदर हमने हार्मनी लेकर आनी है, और इसको जो है इस वर्चुअल वर्ल्ड को जो है हमने पीसफुल बनाना है। तो ये मेरी सबमिशंस है, जो कि टाइम की शॉर्टेज है, मैंने तो काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे जिसके ऊपर मुझे था कि मैं बात करूँगी। कल भी मैं एक जो है प्रोग्राम में गई जो मॉर्निंग शो में, तो वहाँ पर भी डिजिटल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हुई है। और मुझे ये था कि मैं आपके क्वेश्चंस लूँ, व्हाट्स योर ओपिनियन, आप लोग क्या सोचते हैं कि हम इसको किस तरीके से रेगुलेट करें, या इसके बारे में हमें मसलन कि एज अ टीचर जो है या ये पॉलिसी मेकर्स जो है उनको किस तरीके की पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो ऑडियंस जो है वो जो यूज़र है वो ज़रा अच्छा गाइड कर सकते हैं कि भाई इसके बारे में ये कानून बनना चाहिए, इसके बारे में ये रेगुलेशन होनी चाहिए, हमें इन इश्यूज से लाइनों में काम करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, और ये मेरी थोड़ी सी सबमिशंस थी कि ये बहुत पावरफुल कंसंट्रेटेड आपके पास चीज़ है, इसका बहुत ही ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।